Good morning, welcome back to Spoken English. This is Dr. R.S. Moria, helping you out to get a better understanding of English language. Guys, today we are again having a very good chapter, introducing yourself, a complete introduction. What does it mean, complete introduction? Nowadays, this introduction on online or anywhere, people are very much curious to know about you, who you are, from where did you come, and then what do you do, what is your qualification, how is your life, and what are you doing uh, for living. All these things they want to know, and then. Sometime and somewhere we give only incomplete answer, that we see I am Mr. such and such, I am such and such. So that is not enough. Yeah, that I am from UP or from Bihar or from, that is not enough. So let us discuss thoroughly कि इसमें हमको क्या कहना चाहिए. When the question is, where are you from? Where are you from? So, when you ask this type of question, where are you from? So, that is a very, by and large, it requires a lot of things. And uh, for example, the most important question that everyone wants to know is, where are you from? So today, since it is global, it's a global situation. We are from different countries on online. So if someone is from other country, so it's better to say, I am from India. Where are you from? You may say, I am from India. I am from India. मैं हिंदुस्तान से हूँ. आप बोलिए, आई एम फ्रॉम इंडिया, और बहुत गर्व के साथ बोलिए कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं हिंदुस्तान से हूँ. तो दिस वे यू कैन आंसर, इमीडिएट आंसर इज दिस, यू आर एंड you say that I am from India, and then you will be told that they are from Australia, Japan, Germany, anywhere they come. Your next one can answer in that way. Yeah, I'm from Japan, I'm from Portugal, like this. So I'm from Goa. I said Goa to इसी भारत में है. Next, I'm from India. So if the country is there, and then you have to say I am from India, and then if the same country is there, so what will you say? Say, suppose the same country, India, so where are you from? So you may say, I am from Uttar Pradesh, right? I am from UP, I am from Uttar Pradesh. If the question will be on this state level, so you have to say, I'm from Uttar Pradesh, I am from India, and then I am from Uttar Pradesh. So even though there is something that is not complete, where are you from, में फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से हैं. तो फिर जो सामने वाला है वो हो सकता है आपके बारे में और कुछ जानना कि, तो अगर आप सेम उत्तर प्रदेश, आप सेम एक ही प्रदेश से हो, तो आप इसके नीचे उतरिए, प्रदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है. तो यू में से आई एम फ्रॉम
आई एम फ्रॉम, अब कोई डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ उत्तर प्रदेश के, वाराणसी, कानपुर, कोई एनी डिस्ट्रिक्ट विल डू, एनी डिस्ट्रिक्ट विल डू। तो गाइस आप इसको जरूर देखिएगा कि इफ द इफ योर समवन वन स्ट्रेंजर हु इज बीटिंग यू, इफ ही इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री से, इंडिया का नहीं हो, दूसरे देश का, तब आप इसको कीजिए आई एम फ्रॉम इंडिया, और इस पर जोर देना पड़ेगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर जब इंडिया का ही है तो आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और जब उत्तर प्रदेश का है तो फिर आप जो है इसको एम्फेसाइज करोगे कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, और फिर और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोकलिटी में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ये सारा चीज़ हो सकता है। तो इन दिस वे यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। So now come to see another point, another phase of this question, another phase of this question। जैसे मान लो कि वो आदमी जो पूछना चाह रहा कि आप कहाँ से हो, तो वो इस सेंस में भी क्या पूछ सकता है क्या कि आप जो है आप गांव से हो या देहात से हो या बड़े शहर से हो, छोटे शहर से हो, ये भी तो पूछ सकता है। तो वेदर यू आर फ्रॉम विलेज, तो आप लिखिए आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम फ्रॉम विलेज, ऐसे करके बोलो। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम विलेज, ऐसे करके बोला जा सकता है, आप बोल सकते हो। तो इस सेंस को भी आप समझिए कि जो जानने वाला, जो व्यक्ति आपको जानने वाला है, वो आपका कहीं वो बैकग्राउंड तो नहीं, लोकेशन नहीं पूछ रहा है, तो वो लोकेशन बैकग्राउंड पूछ रहा होगा। जैसे यू आर, आई एम फ्रॉम, अब हो सकता है आप गांव से हैं तो आप विलेज लिखिए, आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम टाउन, हम टाउन से हैं, आई एम फ्रॉम सिटी, आई एम फ्रॉम बिग सिटी, आई एम फ्रॉम ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो है बड़ी सिटी होती, बहुत बड़ी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी लिख सकते हो। तो आई ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप किस शहर से हो, गांव से हो, छोटे शहर से हो, बड़े, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप रस्टिक बैकग्राउंड से हो, मतलब बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है ना, बैकग्राउंड में तरह तरह का, जैसे रूरल है नहीं, एरिया में पूछा जाता है, जैसे एरिया है तो एरिया में भी तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन, और सब अर्बन भी होता है, सब अर्बन बहुत तरह के। तो इस एरिया से तो आप नहीं हो, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसी ढंग से आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम टाउन, सिटी, बिग सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आई कम फ्रॉम रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया, बैकवर्ड एरिया, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड भी इसमें होता है, किस ढंग से आप उसका यूज़ करना चाह रहे हो आप पर डिपेंड करता है, किसको बैकवर्ड बोलते हो, किसको फॉरवर्ड बोलते हो, ये भी एरिया को ही बताता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रूरल, अर्बन एरिया। तो दैट इज़ वाई आई सेड ना, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या होता है,
कंप्लीट इंट्रोडक्शन में आदमी आपको दे वांट यू दे वांट टू नो यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स स्क्वायरली, कंप्लीटली दे वांट टू नो। तो इसलिए आपको यू शुड बी रेडी टू से एनीथिंग आर सेटिस्फाई टू हिम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस ढंग से पूछा जा सकता है। और फिर अगर ये चीज़ आप बता दिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस एरिया से आते हैं, तो इसके बाद फिर और सवाल रह जाता है कि आप जहाँ रह रहे हैं तो आप उसके बारे में आप जैसे कर सकते हैं वेयर यू लिव्ड फॉर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे वेयर यू लिव्ड या आप कहाँ रहते थे और कहाँ रह रहे हो, दोनों चीज़ उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जो है कभी मान लीजिए कोई हम आई वॉज बिफोर आई केम टू इंडिया आई वॉज वर्किंग इन यूके एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ऐसे कर सकते हो कि हम यहाँ से आने के पहले हम जो है वो इंग्लैंड में काम कर रहे थे, या आई वॉज वर्किंग समवेयर, तो उसको ही बताना पड़ता है। तो कितने साल से काम कर रहे थे, जैसे सपोज आई या आप बता सकते हो कि आई वर्क इन नागालैंड फॉर 20 ईयर्स या से 25 ईयर्स देयर, और आई वर्क इन सिंगापुर फॉर 19 ईयर्स एंड देन आई केम टू इंडिया एंड स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड व्हाट एवर इज देयर, तो यू हैव टू टेल। एंड देन हमने बताया कि जैसे अगर मान लीजिए कोई शहर है, आप अच्छे जगह से, क्योंकि आदमी जो है पिच करना चाहता है आपको कि ये आदमी जो है वो कौन सा इम्पोर्टेंट या पॉपुलर जगह से है। जैसे आई सेड कि वाराणसी हमने क्या किया, तो जरूर उसके दिमाग में वाराणसी आ जाएगा, क्योंकि वाराणसी इज ए प्लेस इन इंडिया एवरीबॉडी नोज एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट दिस प्लेस। तो आप बताइए, आई एम फ्रॉम वाराणसी and I graduated from Banaras Hindu University and then I started teaching, yeah whatever is there, but लेकिन उसके बारे टीचिंग के से इसके ये करने के पहले वो जानना चाहे वाराणसी है, बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि क्या है। तो वाराणसी इज ए कल्चरल प्लेस, ए कल्चरल सिटी आप कह सकते हो। और एल्डस हेक्सले जब वो आया था उस समय बहुत बिफोर 1947 के पहले 30 आई थिंक, इसके पहले उसने कहा था कि ये जो है सिटी ऑफ टेम्पल, इसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल, बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। और अभी यूनेस्को ने उसको बनारस को कहा है कि कल्चर इंटरनेशनल प्लेस ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल कल्चरल प्लेस वाराणसी को बताया है। और आप उसके बारे में बताइए कि आप आइए, डू कम टू वाराणसी, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज़ ए कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन प्लेस एंड यस देयर इज ए बहुत सारी चीज़ें, टेम्पल्स आर देयर, बट टेम्पल्स डोंट मीन दैट कि वो किसी एक जो है किसी एक का वहाँ आधिपत्य है। वाराणसी इज नॉट दैट प्लेस, वो वहाँ हिंदू का आधिपत्य है। कभी भी हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। वाराणसी के पहले कवि चौरा को आप देख लीजिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पहले भी कल्चरल प्लेस का मतलब वेयर ऑल कल्चर्स, वेयर ऑल सिविलाइजेशन मीट, इट डज नॉट मीन दैट इट बिलोंग्स टू सर्टेन कम्युनिटी या सर्टेन थिंग्स, ऐसी बात नहीं है, कोई भी आदमी आ सकता है। इसीलिए दुनिया भर के आदमी वाराणसी बनाना चाहते हैं, ये एक चीज़। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपको ये पूछ सकता है कि आप जैसे आपके बारे में वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपके बारे में भी जानना चाहेगा, तो आप उसको बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि देखो भाई कि हम मेरा नाम, हाँ यू से माय नेम, तो आप कोई नाम बताइए, जैसे सत्य प्रकाश,
माय नेम इज सत्य प्रकाश सिंह। पूरा नाम बताइए तो पूछा जाता है, सत्य प्रकाश सिंह। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आप इसको ऐसे बताइए, माय नेम इज सत्य प्रकाश सिंह, आई एम ए टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, बट I school, I teach English to school children. ऐसे बोलिए, I teach English to school children. I teach English to high school children. To high school children. ऐसे बताइए, high school children. अब ये चीज़ आप अपने बारे में बता दिया, ये तो आप अपना परिचय दिए। फिर आपके लाइकिंग के बारे में भी जानना चाहेगा कि जब आप टीचर हैं तो किस क्या लाइक करते हो, तो आप बताओ कि आई लाइक ऑनलाइन टीचिंग, आई लाइक ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग हमको पसंद है। तो ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है उसके बारे में बताओ कि ऑनलाइन टीचिंग आजकल ये लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है और हर आदमी जो है हर जगह वो डेवलप तभी करता है जब वहाँ वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे। अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता है तो हमारा एजुकेशन बहुत पीछे रह जाएगा और आने वाला भविष्य जो है वो जो है टेक्नोलॉजी का ही है। इसलिए देयर इज़ ए ग्रेट फ्यूचर इन ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग का ज़्यादा महत्व है, बढ़ेगा। और अब लोगों के पास वो बड़े बड़े क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, बड़े स्टूडियो की ज़रूरत है, कनेक्टेड स्टूडियो की ज़रूरत है। वो वहाँ से सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड देन अगेन यू हैव टू टेल दैट वाराणसी इज़ द प्लेस। तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर वाराणसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल ऑफ ऑल नॉलेजेस, सर्व विद्या की राजधानी। तो अतीव सुंदर, तो सर्व विद्या की राजधानी है बनारस में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू who are listening to me or